Hello students, today we start new chapter Internet Services. Internet services जैसे information retrieval, search engine, finding people on the net, chat, email, e-groups, video conferencing, e-commerce, e-learning, social networking, e-government, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी क्या है स्टूडेंट, इंटरनेट सर्विसेज हैं। In our previous chapter, we have to discuss about the working of the internet, which is one of the largest network of computers spread across the world. It is not owned by anyone and it is publicly accessible to everyone whoever is a part of this network. It offers variety of services to its user like information retrieval, resources sharing, communication, etc., due to which it has become one of the necessary in everyone's life. In this chapter, we will discuss all these services in detail to explore the reason of its popularity among the different type of user. Information retrieval on the internet. Internet is a vast source of information accessible in the form of its one of the most popular service called World Wide Web, which contain information on almost any imaginable topic. This information is stored in the form of web pages on the various web services. Each web page has its unique address known as its URL, which help to locate a specific web page on the World Wide Web. To use the World Wide Web facility on your computer along with the internet connection, you need a browsing software called web crawler running on your system. It is this software on the client machine which send on HTTP request to the web server for the required resources in the form of its URL and display the information received from the web server. तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइव क्या होता है, जो सबसे बड़ी सर्विस है इंटरनेट की वो है www पर लाखों पेज, लिंक, सब कुछ हमें प्रोवाइड होता है। तो इनको सर्च करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र वर्क करता है HTTP के, www जो वर्क करता है वो HTTP के साथ वर्क करता है। HTTP क्या करता है, रिक्वेस्ट को वेब सर्वर पे सेंड करता है। तो सर्वर क्या है, वो हमें जो भी वेब पेज के रिगार्डिंग इसको रिक्वेस्ट सेंड की होती है वो हमें देता है, वो हमें क्लाइंट को सेंड करता है। द वेब पेज कंटेन हाइपरलिंक प्रोवाइडिंग लिंक टू द अदर वेब पेज और वेबसाइट विच व्हेन क्लिक्ड open the connected web page in the browser window. In this way we can easily navigate from one page to another, from one website to another. जो hyperlinks होते हैं स्टूडेंट, उनसे क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो उसमें बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर स्टैंड कर जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर गए वहाँ पर भी लिंक है, उस पर हमने क्लिक किया तो हम फिर उससे नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो इससे बहुत इजी हो जाता है किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करना, सर्च करना। द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ नोन एज नेट सर्फिंग। योर कंप्यूटर, यहाँ पे देखो योर कंप्यूटर वेब ब्राउज़र, तो रिक्वेस्ट वेब पेज, सेंड बैक एंड वेब सर्वर। तो आप क्लाइंट से क्या करते हो, सेंड करते हो, उसके बाद ब्राउज़र से आप क्या करते हो, सर्चिंग के लिए हेल्प करते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वेब सर्वर को करते हो। वेब सर्वर हमें वापस क्या करेगा, वही वेब पेज जो हमने सर्च किया है वो हमें सेंड करेगा। तो ये होती है इंफॉर्मेशन रिट्राइव। नेक्स्ट है सर्च इंजन।
सर्च इंजन क्या होते हैं स्टूडेंट, जो सर्चिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सबसे जो मेन सर्च इंजन है वो है गूगल, बिंग, याहू, ask.com। तो हमने कुछ भी सर्च करना है तो हम इन सर्च इंजन का यूज़ करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ वेब पेज लिंक विद ईच अदर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। द साइज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे as every day new pages are getting added to this virtual hyper text network on such a large pool of information. It is almost impossible to locate the specific required information. In this situation we need program which can help us quickly locate the required information. Search engine are the server residence program which help to user on the client machine to locate the web page नीडेड विद द हेल्प ऑफ सर्च कीवर्ड। तो सर्च इंजन के साथ क्या यूज़ होते हैं स्टूडेंट, सर्च कीवर्ड यूज़ होते हैं जो कि वेब सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद हमें जो भी हमने वेब पेज या जो भी हमने सर्च के लिए रिक्वेस्ट सेंड की होती है वो हमें सर्च करके देते हैं। दी सर्च इंजन मेंटेन ए डिक्शनरी और इंडेक्स। तो सर्च इंजन ऐसे वर्क नहीं करते, ये इंडेक्स के थ्रू वर्क करते हैं। एक डिक्शनरी ये क्रिएट करते हैं पहले और उसमें इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे मान लो अल्फ़ाबेटिक कुछ भी अरेंज कर लिया या जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी जो भी लोगों ने वहाँ पे अपलोडिंग की, चाहे आपने एक ताज वर्ड डाला, ठीक है, कुछ भी डाला, तो उस वर्ड से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो एक लिस्ट में शो हो जाएगा। तो ये होती है इंडेक्सिंग। तो उसमें से आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे तो वही वेबसाइट, वेब पेज, वही लिंक हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये होती है इंडेक्सिंग। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट क्या होते हैं, वेब क्रावलर होता है, डाटाबेस और इंडेक्स होती है, सर्च एल्गोरिथम होती है। सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वेब क्रावलर, दिस इज़ ए प्रोग्राम विच स्कैन द वेब सर्वर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट टू क्रिएट इंडेक्सेस ऑफ द URL लिंक एक्सेट्रा। तो वेब क्रावलर क्या करता है, स्कैन करता है वेब सर्वर को और इससे क्या करता है, जो भी आपका डाटा है उसको टॉपिक वाइज क्या करता है, इंडेक्स करता है, उन लिंक को इंडेक्स करता है। इट कंपाइल द लिस्ट ऑफ URL एंड कीवर्ड्स एसोसिएट विद दिस। तो जो भी उस वर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं या लिंक होते हैं उनको कंपाइल करता है URL को। द डाटाबेस और इंडेक्स, दिस लिस्ट ऑफ कलेक्टेड URL लिंक एंड कीवर्ड्स इज वर्क अपॉन बाय इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट डाटाबेस। तो इस तरह उनकी एक डाटाबेस क्रिएट हो जाती है ऑफ रिलेटेड कीवर्ड एंड रिसोर्सेज। जितने भी रिलेटेड कीवर्ड हैं या लिंक हैं उनकी एक अलग से डाटाबेस क्रिएट करता है। द सर्च एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम perform the search in its database to return the web page URL containing the keyword provided by the user। तो यूज़र जो भी सर्च करता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करता है। हाउ टू सर्च इंजन वर्क, द सर्च www to select information based on the specific keywords, the keyword or an index of the word and their location. They display user a list of website the match the keyword found in their inbox। मान लीजिए आपने गूगल ओपन किया, इसमें आपने कोई भी एक कीवर्ड डाला, मान लो CBSE डाला, तो CBSE से रिलेटेड इसके सर्वर के अंदर जितना भी डाटा है वो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। जैसे CBSE सैम्पल पेपर, CBSE साइट, CBSE फॉर्म, CBSE स्टूडेंट डाटा, मतलब जितना भी इसके अंदर सर्वर के अंदर डाटा है वो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या फाइंड करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। सर्च इंजन यूज़ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर नोन एज रोबोट और स्पाइडर और क्रावलर टू सर्च द वेब फॉर द इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर। तो जो ये वेब क्रावलर जो सॉफ्टवेयर है ये एक रोबोट, इसको रोबोट भी कहते हैं और स्पाइडर भी कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा, जितना भी जो भी हमने कीवर्ड डाला उससे रिलेटेड फाइल के अंदर ऑटोमेटिक सर्च करेगा। दिस वेब क्रावलर ब्राउज़र द वेब and store information about the web page they visit every time a web crawler visit a web page. It make a copy of it and add its URL and in an index. It keep doing this, building up a huge index of many web page as it goes. The index basically a big list of word and the web page.
For example, when a user asks a search engine about classical dance, the search engine check its index and give a list of pages that mention classical dance. This list has hyperlink which when we click take you to the रिस्पेक्टिव साइट्स। मतलब आपने गूगल में कुछ भी सर्च करना है, आपने लिखा क्लासिकल डांस, तो उससे रिलेटेड आपको क्या डाटा चाहिए, तो काफ़ी आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको जो भी सर्च करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। तो इंटरनेट पर पीपल्स को, लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को फाइंड करना आजकल बहुत इजी हो गया है। इसके लिए काफ़ी सारी साइट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये people.com है, और सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते ही हो। फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपने कोई भी अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव का नेम डाला, उससे रिलेटेड एक लिस्ट आ जाएगी। आपको जो भी लगेगा कि हाँ यही है वो पर्सन, आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप ईज़िली फाइंड कर सकते हो, अपने सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए आप एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है चैट। चैट क्या होती है? ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो होती है, हम ऑनलाइन जो कन्वर्सेशन करते हैं तो होती है चैटिंग। इंटरनेट चैटिंग इज़ वन ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम विच हेल्प टू द पीपल converse each other in real time by exchanging text message. In this messages are exchanged instantly between the user who are connected on the internet. Messages are delivered instantly and flashed on the receiver screen. आपने कुछ भी लिखा, ये देखो ये स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत आएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो या फेसबुक मैसेंजर पे चैट करते हो, तो ये इस तरह से मैसेंजर भी प्रोवाइड होते हैं हमें ऑनलाइन चैटिंग के लिए। इंस्टेंट मैसेजिंग, ए कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन द इंटरनेट अलाउ इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर इज़ नोन एन इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये अलग याहू के जैसे अलग से चैट रूम भी बने होते हैं, तो आप किसी को भी मतलब किसी को भी रिक्वेस्ट सेंड करके आप उससे चैट कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड इज़ क्रिएटेड ऑन द इंस्टेंट मैसेजिंग व्हेन द मैसेज अराइव एंड अलर्ट पॉपअप्स। सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, हाइक मैसेंजर, व्हाट्सअप चैट, स्नैपचैट। तो इस तरह से ये इंस्टेंट मैसेजिंग के प्रोग्राम्स हैं। ईमेल क्या होती है स्टूडेंट? जैसे मान लो हमने कोई भी मैसेज सेंड करना है तो हम ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। ईमेल बहुत ही पॉपुलर, आजकल के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। तो ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज सर्विस ऑफ द इंटरनेट विच अलाउ द यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मेल इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Moreover, a mail can be sent to the individual or group of people within no time and what to without any additional cost. तो स्टूडेंट आप कहीं पर भी मेल को सेंड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी अपना मैसेज सेंड करना है, आप सिंगल पर्सन को भी कर सकते हैं, आप ग्रुप मेल भी कर सकते हैं, और कोई भी अलग से इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। सो इट इज़ वन ऑफ द efficient, fast and cost effective method of communication. The mail delivery system work just in the same way as a traditional mail system. In this system the user need to get an email address. हमने जिसको भी मेल सेंड करनी है हमारे पास उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो once when the account is created user can go login server and use it service. तो एडवांटेज क्या है? क्विकली डिलीवर है, जल्दी से सेंड हो जाता है। जैसे आपने कोई मेल सेंड की तो मैसेज आ जाएगा यूर मेल हैज़ बीन सेंट। कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसमें कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है। तो आपने जितना मतलब नेट पैक है उसी में इसकी कॉस्ट लग जाती है, तो एडिशनल मनी इसमें कोई नहीं होती है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी की कोई नीड नहीं है। ये जो ईमेल है ये आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप बॉडी में टेक्स्ट मैसेज भी दे सकते हो, इमोजीज भी लगा सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। तो अलग से कोई स्टेशनरी की नीड नहीं है आपको। रिकॉर्ड मेंटेन, तो आपने मेल का जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहता है।
ग्रुप मेल कर सकते हो। आपने एक ही मैसेज, मान लो आपने बर्थडे पार्टी के लिए या कोई भी आपने एक मीटिंग करनी है, उसके लिए अपने एम्प्लॉय को मैसेज सेंड करना